When you are making a call, you have your conversations. And my dear staff and my dear students, a very good afternoon, it's morning, a very good morning to one and all present here. So we are covering up two major events today. The first one is cybercrime awareness, threats and prevention, and the other one is to facilitate our SOF winners, Science Olympiad Foundation winners. So I'll be covering up the second portion, which is Science Olympiad Foundation's facilitation. Alright. So it's a proud moment for all of us as we gather to celebrate the success of our young achievers who have excelled in the Science Olympiad Foundation exams, be it is IMO, it is mathematics, NSO, IEO, IGKO, ISSO, and IHO. These exams are designed to stretch the limits of students' thinking and understanding. And our brilliant minds have not only accepted the challenge but also have come out with flying colors. Let's give a huge round of applause as we facilitate these stars who have made the school proud at the school, zonal level and even international level. The international level facilitation will be done in the month of August. The international and zonal level facilitation will be done in the month of August. So now we'll be covering up the school gold level facilitation. You should be aware आपकी Gmail जो है वो कौन से साइट पे जा रही है, क्यों जा रही है और वो आपकी Gmail से क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं. अच्छा मुझे बताइए आपकी Gmail की सेटिंग्स में कितने हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट साइन ऑन कर रखा है कि आपकी Gmail जहां भी किसी भी डिवाइस में लॉगिन हो जाए तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं. मेजॉरिटी फ्यू ऐसे ही होंगे जिनको पता भी नहीं होगा. अगर आपकी Gmail लेट्स से एक न्यू डिवाइस में तो साथ ही साथ आपके कॉन्टैक्ट्स भी और आपके प्रीवियस मैसेजेस एंड ऑल दैट हिस्ट्री वो सब शो अप हो जाती है. इज दिस ट्रू और नॉट? नो मैम. व्हाट इज AI? ChatGPT फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटा AI ऑन WhatsApp जिनसे आप लोग क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स निकालते हो और बाद में टीचर्स को कहते हो कि मैम देखो AI ने ये बोला, आप बोल रहे हो ये. कितने हैं? मेटा AI से तो 100% बेटा कुछ ना कोई मैसेज या फिर कोई पैराग्राफ, इवन एप्लीकेशन आई हैव सीन, बच्चे बस एक कमांड दे देते हैं ChatGPT को एंड दैट जिबली ट्रेंड व्हिच वाज देयर, एक फोटोग्राफ चढ़ाओ और उसका कार्टून इलस्ट्रेशन बना लो. How many of you did that? How many of you actually did that? I want to know. Also, how many of you are actually aware of your screen times? Time do you scroll on the social media? How many of you have Instagram first of all? Yes, Instagram. How many of you use Instagram on daily basis? Something that deeply impacts our life in today's digital age. Cybercrime. From identity theft to online scam, cyber threats are real and growing. This session aims to spread awareness and help us to stay safe, vigilant online. On behalf of Indian Public School, Kidzi Katwa,
I extend a warm welcome to our Honorable Chairperson, Mrs. Manu Sharma ma'am, respected Principal, Mrs. Balwinder Kaur ma'am, our esteemed guest, SHO, Mr. Shubham Mahajan Hatli sir, and his subordinates, all our dedicated teachers and dear students. To begin this enlightening event, I request our chairperson, principal, senior coordinator, and our special guest to kindly come forward for the... Guys, presently I am not posted in CyberCell, but my last year experience of CyberCell was quite good. Last year I was posted as in charge CyberCell, and within an year our CyberCell successfully recovered about 50 lakhs of amount. So okay, first of all I would like to ask you, what do you mean by cybercrime? I want it to be an interactive section rather than a one-way communication. It would be better if we communicate, and it will be good. Okay, no problem. Cybercrime is a crime which usually goes online. That means on the mobile, on internet. So cybercrime is broadly classified into two types. Both are interrelated to each other. One is social media and other is financial fraud. मज़ा नहीं आ रहा, कोई बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भाषण दे रहा हूँ. एक टाइप होता है कि फोन को हैक करके ऑनलाइन किसी के भी पैसे ले सकते हैं या कुछ पर्सनल डाटा है वो उसको भेज सकते हैं. मैं 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं गेम खेलता था तो मेरी आईडी उसमें से स्कैम हुई थी. अच्छा, कौन सी गेम खेलते थे आप? कौन सी गेम खेलते थे? मैं खेलता था पबजी भी खेलता था, फ्री फायर भी खेलता था. एक होता है सोशल मीडिया फ्रॉड और दूसरा होता है अपना ये फाइनेंशियल फ्रॉड. सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया जिसमें क्या करते हैं, जो हैकर होते हैं आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, ठीक है ना. और फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया जो कि पैसों से रिलेटेड है. आप क्या करें, जैसे कि आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लिए, आपको मैनिपुलेट करके उन्होंने इस तरह से आपको मैनिपुलेट किया कि आपने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है ना. तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है जानना कि साइबर क्राइम होता क्या है, अपने आप को बचाने के लिए साइबर क्राइम से, ठीक है ना. तो फाइनेंशियल फ्रॉड में किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड चलो हुआ नहीं होगा, लेकिन सुना तो सबने होगा. फाइनेंशियल फ्रॉड सुना किसी ने? किसके साथ हुआ? जैसे कि ऐप चीज ऑर्डर की और आ रही है. अच्छा, आपका नंबर आएगा, ओटीपी तो दो. हाँ हाँ, वो नंबर आया, ओटीपी तो बता दिया. जैसे तो कितने अमाउंट था? 75,000. तो आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई? गलती होगी ओटीपी जो है ना, वहाँ पे. तो ओटीपी तो पहले तो शेयर करना ही नहीं होता है, उस पर आपको मैसेज भी जब आता है उस पर भी लिखा होता है डोंट शेयर इट विद एनीवन, राइट. दूसरी चीज़ वो हमारा जो हुआ हमारे साथ वो पैसा वो वापस आता है, वो वापस. तो इससे बेटर यही है कि पहले ही हम अवेयर रहें साइबर फ्रॉड से. पहले तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऑनलाइन किसी पे भरोसा नहीं करना है आपको. जो भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है उसको आप यही सोचें कि ये कोई फ्रॉडलैंड बंदा है, ठीक है ना. अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, स्नैपडील हो गई, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गई. आप वहाँ से शॉपिंग करें जो ऑथोराइज्ड हैं, जिनके पास जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे बहुत सारी एड्स आती रहती हैं, नए सेलर्स होते हैं ना. कौन करते हैं इंस्टाग्राम पे शॉपिंग? हाँ, तो इंस्टाग्राम पे मेरे हिसाब से थोड़ा सस्ता मिलता है तभी. हाँ, तो क्या होता है कि अब इंस्टाग्राम पे तो कोई भी ऐड चला सकता है अपनी, ठीक है ना. अब वो रजिस्टर्ड है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता ना, ठीक है ना. हमें नहीं पता कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हम मतलब एक अननोन पर्सन को अपने पैसे दे रहे हैं, राइट. अब वो चीज़ हमें देगा नहीं देगा, कैसी देगा, वो हम कुछ कह नहीं सकते. तो एक तरह का ये भी एक फ्रॉड ही है, ठीक है ना. दूसरी चीज़ फाइनेंशियल फ्रॉड में आ गया
कॉल्स किस किस को आते हैं? कॉल्स तो सबको ही आते हैं। लॉटरी के लिए कॉल आया किसी को आज तक? ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर किसी ने अपने घर में बताया होगा, पापा हमारी गाड़ी निकली है, जब सफारी निकली है, स्कॉर्पियो निकली है। अरे मुझे खुद आते हैं, आपको क्यों नहीं आते? ठीक है ना। तो पहले तो अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो ये सोच लीजिए कि नथिंग इज़ फॉर फ्री। ठीक है ना, कोई चीज़ फ्री तो मिलती नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई आपको फ्री में स्कॉर्पियो दे रहा है तो वो इट मस्ट बी ए फ्रॉड, राइट। वो बोलेंगे आपको कि आप एक काम करो, आपकी लॉटरी निकली है, अब आपको थोड़ी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, 10,000 15,000 20,000 दे दो, आप दे देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो बोलेंगे सर अब इसमें और थोड़ी फीस लगेगी। तो आप उस लूप में फंस जाएंगे, यार अब मैंने 20,000 तो दे दिया तो मैं 10 और दे ही देता हूँ। तो वैसे ऐसे आप लूप में फंसते जाएंगे, देते जाएंगे और वो तब तक लेते रहेंगे जब तक कि आप देना बंद नहीं करते। ठीक है ना। तो पहले ही आपने अपने आप को जो इस चीज़ों से बचाना है, पहले ही मतलब अननोन बंदों को आपने पैसे नहीं देने हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा एक सिम वाला हो गया फ्रॉड हमारे पास। हाँ, अरे फेसबुक तो सब चलाते हैं। अच्छा, पूरे 150-200 लड़कों में एक ही लड़का चलाता है फेसबुक? ये तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट रेज योर हैंड्स, कौन कौन फेसबुक चलाता है? Ask Instagram. They are Okay. the young more on Instagram. मोर ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया कि यार मुझे ना 10,000 रुपये सेंड करना है यार, ज़रूरत पड़ गई है। तो मैंने कहा यार ये इंस्पेक्टर मेरे से ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो ये मेरे से क्यों पैसे मांग रहा है? तो मुझे तभी शक पड़ गया कि यार ये कोई है, वही है। मतलब कि आईडी पूरी सेम बनी है, उसके फ़ोटोज़ पूरे जो जैसे फेसबुक पे एक आईडी बनती है ना, वैसे ही सेम आईडी बनाई हुई है। तो फोटोज़ भी उसके उनके लगाए हुए हैं, सब कुछ वैसे ही। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सेंड करता हूँ। आई जस्ट कॉल्ड हिम। तो फिर मुझे उन्होंने बोला यार मैं तो नहीं मांगे कोई पैसे। मैंने बोला अच्छा, फिर इसका मतलब आपकी एक आईडी बनी हुई है, उसको रिपोर्ट करो, उसको अपना शेयर कर दो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अदरवाइज़ पता नहीं कितने बंदे इसमें ट्रैप हो जाएंगे और उस फ्रॉडस्टर को पैसे दे देंगे। तो यानी कि कोई भी सेफ नहीं है, पुलिस वाले भी सेफ नहीं है, समझ रहे हैं। आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि क्या है कि ढूंढना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट पे किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसमें लगता है टाइम। ठीक है ना। तो आपको अपने आप को बचाना है। इनफैक्ट हमारे जो एक बार हमारे डीजी साहब हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनकी तक आईडी बनी हुई है। मतलब किसी ने उनकी भी आईडी बनाई हुई थी और वो भी पैसे डिमांड कर रहा था। ऐसा भी करते हैं लोग। तो मतलब कि अब कोई बोलेगा यार ये डीजी मांग रहा है पैसे, तो अगर कोई अपना थोड़ा सा कॉन्शियस यूज़ करे ना, तो उसको पता चल जाएगा यार इस बंदे को मेरे पैसे की क्या जरूरत है। ठीक है ना। तो किसी को पैसे देने से पहले ये देखना है यार कि मैं पैसे किसको दे रहा हूँ। ठीक है। और अच्छा, पासवर्ड किस ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है? किसी ने? सबने ऐसे ही 1 2 3 एप्पल 1 2 3 अपना नाम @1 2 3 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है सबने, हर जगह सेम रखा है। हाँ, पासवर्ड अपने ना थोड़े स्ट्रॉन्ग रख लें। ठीक है। बड़े जो सिंपल से पासवर्ड नहीं रखेंगे, अपना नाम रख दिया @1 2 3 रख दिया, तो वो तो प्रिडिक्ट हो जाते हैं बड़े आसानी से, तो वो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। और थोड़ा कोई शेयर करो अपने बारे में, मतलब कि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ हो, कोई आपने ऐसा सुना हो कुछ अलग तरह का फ्रॉड, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ। हाँ, व्हाट्सएप भी हैक हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपने ही OTP शेयर किया होगा। ओके, अगर आपने OTP शेयर नहीं, अननोन सोर्स से APK आता है ना, APK आ गया, iOS की कोई ऐप आ गई, आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस कर लेता है। रिमोटली एक्सेस करने का मतलब उसको ही विल सी योर ऑल द स्क्रीन। ठीक है। आपकी पूरी स्क्रीन जो है फ्रॉडस्टर को दिखेगी। तो वो क्या करेगा, मैसेज भी मतलब कि ट्रांजैक्शन करेगा, मैसेज आपको आ जाएगा, वो मैसेज देख के डिलीट भी कर देगा। आपके देखने से पहले मैसेज डिलीट भी हो गया। आप बोलेंगे यार मैंने तो कुछ शेयर किया नहीं, लेकिन वो जो है आपका फ़ोन एक्सेस हुआ है, तो आपका वो जो पैसा है जो थेफ्ट है, जो आइडेंटिटी है, वो सारी वहाँ चलेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपका हैकिंग, मतलब कहीं ना कहीं लूपहोल आपने छोड़ा हुआ है। अदरवाइज मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया हो और आपके साथ कुछ ना हो और आपने जो है आपके साथ फ्रॉड हो गया। कुछ ना कुछ लूपहोल आपने छोड़ा है।
उस वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ।